Welcome to Sci Learning by Swaliha Ansari. Today we are going to start with some problems based on Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. So our first problem is, in an electrical circuit, the currents 2 ampere, 1.5 ampere and 3 ampere flows towards the junction, while a current of 2.5 ampere and an unknown current leaves the junction. Find the magnitude of the unknown current. So, beginning with the problems of current electricity, let us first understand what the problem says. So here the problem is saying that there are 3 currents which are flowing towards the junction and 2 currents are flowing away from the junction. So let us first make the junctions. This is my junction. These 3 currents are flowing towards the junction. Let me name it as I1, which is 2 ampere, I2, this is 1.5 ampere, I3 is 3 ampere. And there are 2 currents which are flowing away from the junction. So let me name it as I4, which is 2.5 ampere, and I5, which is unknown. Okay. So what we have to find is the value of unknown resistance. As we all know, Kirchhoff's current law says that the summation, that is the algebraic sum of all the currents at the junction, is equal to 0. हमने first lecture में पढ़ा था algebraic sum of all the currents at the junction is equal to 0. It means summation of current at the junction is 0. So by applying that law, that is Kirchhoff's current law, what I will write here is minus, let us first begin with I1. Since the I1 is flowing towards the junction, it will be positive. Therefore, I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. Let us substitute the values, and the values are 2 plus 1.5 plus 3 plus minus 2.5 minus x is equal to 0. So it becomes 6.5 minus 2.5, x will go to that side and it will be positive x. So 6.5 minus 2.5 is 4. Hence the unknown current becomes 4 ampere. Therefore I can write I5 is equal to 4 ampere, which is the unknown current is 4 amperes. So this was our first problem, which was based on current law. Now we will proceed further with voltage law. So my second question says that a voltmeter has a resistance of 100 ohm. What will be the reading of the voltmeter when it is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance of 20 ohms? So by reading this question, let us first find what is the given part of the question, and then we will draw a circuit diagram by understanding the question. So here the question says that there is a resistance of 100 ohm and an internal resistance of 20 ohms. There is an EMF of cell
whose internal resistance is provided is 2 volts, and you have to find the reading of voltmeter. So let me draw the circuit diagram. The circuit diagram says that there is a battery with an internal resistance. So I will draw this like this, that there is a battery with an internal resistance and a voltmeter is connected across it. Here the value of your battery and internal resistance is provided as 2 volt and 20 ohm. Correct? And the resistance of voltmeter is 100 ohm, and we have to find what voltage does it provides. So let us proceed further. By Ohm's law, we all know V is equal to IR. Here we have E in place of V, so I will say E is equal to I into R, but here the R means external resistance plus internal resistance. It means R plus small r. Okay. And with this formula, अगर मैं ये R plus R यहाँ लेके चली जाऊं तो I क्या हो जाएगा? E upon R plus R. Correct? Now I have the value of E, I have the value of R, and I also have the value of small r. So my I becomes 2 upon 120, which gives me 1 upon 60. So the current flowing through the circuit is 1 upon 60 ampere. Now moving further, what is the voltage? The voltage is EMF minus the voltage of the cell, correct, which is IR. Here we are dealing with internal resistance. Fine. So V becomes 2 minus 1 upon 60 into 20. So it becomes 2 minus 1 upon 3. So I can say 3 2s are 6, 6 minus 1 upon 3, which is 5 upon 3. Therefore V becomes 5 upon 3. अगर हम solve करेंगे तो it is something 1.667 volts. So I got the value of V, so I can write the reading of voltmeter. Therefore the reading of voltmeter will be 1.667 volts. So this was the second problem. Moving further, we'll go to the third problem. My third question says that determine the currents I1, I2 and I3 from the given network. अब यहाँ पे हमें एक सर्किट डायग्राम दिया है जिसमें this is 30 ohms, 40 ohms, 1 ohm. Cell E2 is of 45 volts. E1 is of 80 volts. This resistance is 1 ohms. This resistance is 12 ohms. And these are the direction of the current flowing through the circuit. Means, as we know, the current moves from positive to negative. So, the current starts from positive terminal and came here. Correct? Then here, the current got the junction and it splits into two. एक ऊपर की तरफ गया, एक नीचे की तरफ आ गया. ठीक है? अब यहाँ से जो करंट स्टार्ट हो रहा है वो इधर जा रहा है, वो इसमें जा रहा है. करेक्ट? यहाँ वाला करंट जो इधर गया वो यहाँ से इधर आया, ये वाला इधर से इधर आया, अगेन जंक्शन मिला, दोनों सम अप होकर सर्किट कंप्लीट हो गई. ठीक है? सो आई नेम द करंट एज I1, I2, I3. I1 30 ohms में से पास होकर सर्किट को कंप्लीट कर रहा है. फाइन.
यहाँ पे I2 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ की सर्किट इस लूप से फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे जाने वाला करंट इज I1 प्लस I2। I1 और I2 सामने एक होकर फिर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इट मीन्स माई I3 इज I1 प्लस I2। अगर नहीं समझा तो भी हम बाय अप्लाइंग द करंट लॉ हम देख सकते हैं कि I3 किस तरीके से I1 और I2 के बराबर होता है। सो वी विल सी हियर। देखो, दिस इज माई जंक्शन। जो जंक्शन के करीब आता है वो पॉजिटिव, जो जंक्शन से दूर जाता है वो नेगेटिव। तो I1 और I2 जंक्शन से दूर जा रहे हैं, जबकि I3 क्या है, जंक्शन के करीब आ रहा है। सो माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब मैं I3 यही रहने देती हूँ। I1 और I2 को अगर इज इक्वल टू के इस साइड लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। मीन्स जो अभी नेगेटिव है वो फिर पॉजिटिव हो जाएगी। मीन्स I3 बिकम्स I1 प्लस I2। तो वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यहां से आया हुआ I1, यहां से आया हुआ I2, दोनों ये जंक्शन पे ऐड हो गए और EMF के नेगेटिव पार्ट में चले गए। करेक्ट, सर्किट कंप्लीट हो गई। और हमने वही कहा कि जो पॉजिटिव की तरफ से आ रहा है वो I3 है। इट मीन्स जो यहां से निकलेगा वही तो यहाँ पे आके कंप्लीट करेगा। इट मीन्स के I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, नाउ आई विल अप्लाई Kirchhoff's voltage law. First of all, I will name the loops. So I will name the loop as A, B, C, D, like A, B, C, D, F, G. मैंने E नहीं लिया क्योंकि हम ऑलरेडी EMF के लिए, दैट इज बैटरी के डिनोशन के लिए E का सिंबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, so now I will apply Kirchhoff's voltage law on the loop ADCBA. Applying Kirchhoff's voltage law on loop ADCBA means ऊपर वाला लूप, ये वाला ADCBA, this loop। ठीक है, अगर हम यहाँ Kirchhoff's voltage law अप्लाई करते हैं देन इट विल बी -30I1 प्लस 45 माइनस 1 into I3 माइनस 40I3 इज इक्वल टू 0। Kirchhoff's law लूप पे कैसे अप्लाई किया जाता है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 1 में है। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू प्लीज वॉच एंड देन आप लोगों को पता चलेगा कि कब साइन नेगेटिव होती है और कब पॉजिटिव होती है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई Kirchhoff's current law and how to apply Kirchhoff's voltage law, it is provided in the lecture number 1 of current electricity. So अब यहाँ पे हमने I3 लिया। ठीक है, सो ये देखो, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो इट विल बी समवॉट लाइक -30I1 माइनस I3। अब देखो I3 ये दोनों पार्ट वाला, ठीक है, मैंने -I3 अगर बाहर ले लिया तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। इट विल बी 1 प्लस 40 और ये जो प्लस 45 है वो इस तरफ आकर -45 हो जाएगा। मीन्स ये हो गया -30I1 माइनस 41I3 इज इक्वल टू -45। अगर मैं माइनस को बाहर ले लूं तो इट विल बी 30I1 प्लस 41I3 इज इक्वल टू -45। अब माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बची, 30I1 प्लस 41I3 इज इक्वल टू 45। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ ऑलरेडी वी हैव द वैल्यू ऑफ I3, हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है। I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या हो जाएगा 30I1 प्लस 41 I1 प्लस I2
is equal to 45. So 30I1 plus 41I1 plus 41I2 is equal to 45. अब 30I1 plus 41I1 ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा? 71I1 plus 41I2 is equal to 45. This is my equation number 2. ठीक है. Now for moving further, I will rub this part. Now I will apply Kirchhoff's voltage law on the बड़ा वाला loop. ठीक है. That बड़ा वाला loop is ADCBGFA. ठीक है. ADCBGFA. ठीक है, पूरा वाला. अब अगर हम इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? -30I1 प्लस 20I2 प्लस 1I2 minus 80 is equal to 0, which becomes -30I1 plus 21I2. अब ये -80 आ जाएगा तो +80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 80. तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3. अब मुझे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करना है. दैट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन. अभी हमारा कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 30 और 71 एक साथ आए या 21 और 41 एक साथ आए, राइट? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस नंबर से और इस इक्वेशन को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट? सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, सॉरी दैट इज माई इक्वेशन नंबर 2. सो आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 30 and equation 3 by 71. तो मुझे क्या मिलेगा? 30 into 71 I1 plus, this is my equation, 1230 I2 is equal to 1350. Okay. और इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं 71 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -30 into 71 I1 प्लस 1491 I2 इज इक्वल टू 5680. ठीक है. अब ये दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा. इसको ऐड करो तो ये दिस विल गिव यू 2721 I2 इज इक्वल टू 7030. So I2 क्या हो जाएगा? It will be 7030 upon 2721. लॉग टेबल से सॉल्व कर लो, you will get the answer. I2 is equal to 2.58 amperes. Okay. अब मुझे I2 मिल गया तो I can substitute the value of I2 in any of my equation, correct? But I will substitute in equation number 2. तो मुझे क्या मिलेगा? Putting the value of I2 in equation 2. So it will be 71 I1 plus 41 I2 की जगह I will write 2.58 is equal to 45. तो ये क्या हो जाएगा? 71 I1 plus 41 into 2.58 is 105.78 is equal to 45. अब ये 105.78 यहाँ है तो पॉजिटिव है, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. 71 I1 is equal to 45 minus 105.78. This gives me 71 I1 is equal to minus 60.78. Okay. अब ये I1 क्या होगा? इधर है 71 तो मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. -60.78 अपॉन 71.
So this gives me the value of minus 0.86 amperes. It becomes I1 is equal to minus 0.86 एम्पियर. हमने स्टार्टिंग में देखा था हमारा फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड I1, I2 एज वेल एज I3. हमने स्टार्ट में क्या देखा था, I3 क्या है, इट इज I1 प्लस I2. तो अभी हमें I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया. वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. दिस इज I1 इज माइनस 0.86 प्लस I2 वॉज 2.58. 2.58 में से 0.86 माइनस करेंगे, then the answer will be 1.72 amperes. So I3 is 1.72 amperes. So हमारे पास तीनों करंट्स की वैल्यूज आ गई, राइट. I1 is minus 0.86, I2 is 2.58 and I3 is 1.72. ठीक है, इतना क्लियर है. So we'll move towards the next problem. Next problem says that AB, BC, CD and DA are resistors of 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm and 2 ohm respectively, connected in series. Between A and C is a 1 volt cell of resistance 2 ohms where A is positive, and between B and D is a 2 volt cell of 1 ohm resistance where B is positive. Find the current in each branch of the circuit. पहले तो हम क्वेश्चन को देखते हुए सर्किट डायग्राम बनाएंगे. हमें 4 आर्म्स दिए हुए हैं. देखो A से स्टार्ट होके A पर ही खत्म हो रहा है, मींस लूप टाइप है कुछ इस तरीके से, जैसा हमने व्हीटस्टोन्स ब्रिज देखा था, राइट. सो हम इसे नाम देते हैं A, B, C, D. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे रेजिस्टर्स हैं. यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, चारों जगह रेजिस्टर्स हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि ए बी पे जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू 1 ओम की, मींस दिस इज 1 ओम. बी सी पे जो है वो भी 1 ओम का है. सी डी पे जो है वो 2 ओम का है और डी ए पे जो है वो भी 2 ओम का है. देन ए और सी के बीच में, दैट इज ए और सी के बीच, यू आर हैविंग अ सेल ऑफ वोल्टेज 1 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी वोल्टेज 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम. मींस मैं कुछ इस तरीके से कनेक्शन दे सकती हूँ. यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. क्यों ये पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, ए बीइंग पॉजिटिव, तो जो ए से अटैच है वो पॉजिटिव. ठीक है. इसका क्या वैल्यू है, 1 वोल्ट एंड 2 ओम. और बी और डी के बीच में भी एक सेल लगा है जिसकी वैल्यू क्या है, 2 वोल्ट 1 ओम. ठीक है. और पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ है, बी के पास. क्यों? क्योंकि बी पॉजिटिव है. तो ये बन गया हमारा सर्किट डायग्राम. अब हमें पता क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच. हर ब्रांच में करंट क्या फ्लो हो रहा है वो करंट पता करना है. ठीक है. सो लेट अस सी द फ्लो ऑफ करंट. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर पॉजिटिव से करंट फ्लो होना शुरू होगा. तो यहाँ गया तो दिस इज I1 जो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे जंक्शन मिला तो करंट 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा. इफ आई से कि दिस इज करंट I2, तो यहाँ जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2. यानी जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था उसमें से हमने I2 को माइनस कर दिया, तो जो करंट बचा वो सामने चला गया. करेक्ट. अब यहाँ पे जो करंट आया वो यही था, I1 माइनस I2. करेक्ट. अब I2 यहां से इधर आया, जंक्शन मिला. करेक्ट.
अब यहां से भी करंट फ्लो हो रहा था, करेक्ट। यहां से जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर यहां चले गए। सो आई कैन से इट एज I3। यहाँ पे जो करंट आया वो I3 था। अब ये करंट इधर आया, अब यहाँ पे आकर इधर जंक्शन मिला तो ऊपर की तरफ और इधर की तरफ, यानी दोनों जगह स्प्लिट हो गया। तो यहाँ जो करंट जाएगा वो तो I1 ही होगा, क्योंकि यहाँ से I1 ही निकला था, करेक्ट। तो यहाँ जो करंट में गया वो क्या करंट, वो कौन सा करंट हो गया, I3 माइनस I1। सो what I can say here, it is I3 minus I1, I3 minus I1। ठीक है, रेजिस्टर की वैल्यू हमने रख कर दी जो कि 2 ohms की थी। अब ये देखो I1 माइनस I2, I3 माइनस I1, ये दोनों यहाँ पे मिले तो ये क्या हो गया, I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1। तो ये I1 चला गया, बचा क्या, I2 I3 माइनस I2, राइट। सो जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है वो क्या है, I3 माइनस I2। मीन्स यहां से जो करंट निकला था वो भी I3 माइनस I2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आने वाला करंट I3 माइनस I2 है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे उसको वैल्यू नहीं दी थी, क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू मिलने वाली थी। देखो यहाँ पर आया इधर से इधर, सो यहाँ जो करंट फ्लो हुआ वो क्या हो गया, यहाँ से जो करंट गया दैट वाज I3 माइनस I2। ठीक है, सो ये हो गया हमारी करंट की डायरेक्शंस। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। पहले तो हम इस लूप को जो नाम देना है वो भी दे दें। ABCD ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं E and F। फाइन, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम। So I will apply Kirchhoff's voltage law, applying Kirchhoff's voltage law on loops B, A, D, B, B, C, D, B and A, D, C, E, F, A। ठीक है, अब कहाँ कहाँ है मेरा ये लूप, B, A, D, B, B, A, D, B ये वाला, फिर B, C, D, B, B, C, D, B ये वाला, मतलब पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, उसके बाद E, F, A मीन्स ये नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो हमें ये 3 पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, देखो कैसे क्या हो जाएगा। ये हम पहले ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, दैट इज BADB वाला, तो ये होगा -1I2 -2I3 +2 -1I1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सही करते हैं तो ये हो जाएगा -1I2 -2I3 -1I1 इज इक्वल टू -2। माइनस को बाहर निकाल दो सारा, क्या हो जाएगा, I2 +2 I3 +I1 इज इक्वल टू 2। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा वाला लूप देखते हैं, दैट इज दूसरा ट्रायंगल BCDB। इसमें क्या हो जाएगा, 1 I1 माइनस I2 -2 I3 माइनस I1 +1 I1 इज इक्वल टू 2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यानी जो हमें -2 मिलने वाला था हमने डायरेक्टली यहाँ पे लाके उसे 2 कर दिया। ठीक है, सो ये क्या हो गया, सब मल्टीप्लाई होगा अंदर, इट विल गिव मी 4I1 माइनस I2 -2I3 इज इक्वल टू 2। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। अब तीसरे वाले लूप पे ADCEFA पे वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, सिमिलरली ऑन ADCEFA ये होगा 2I3 +2I3 -I1 +2I3 -I2 इज इक्वल टू
1, क्योंकि ये 1 वोल्ट है, करेक्ट। सो इसको सॉल्व करेंगे तो -2i1 - 2i2 + 6i3 = 1। ठीक है, ये मुझे तीनों इक्वेशंस मिल गई। नाउ वी विल सॉल्व 1, 2 and 3। किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। मैं ये पार्ट को रब कर देती हूँ। What I will do, I will add equation 1 and equation 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 क्या है, मैं i1 पहले लिख लेती हूँ, i1 + i2 + 2i3 = 2। इक्वेशन 2 क्या है, 4i1 - i2 - 2i3 = 2, करेक्ट। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5i1 = 4। तो i1 क्या हो गया, 4/5। 4/5 मीन्स 0.8 एम्पियर। ठीक है, तो i1 की वैल्यू मिल गई। अब i2 देखते हैं। i2 के लिए क्या करेंगे, आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड आई विल एड इट विद इक्वेशन नंबर 3। मीन्स इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 के साथ ऐड कर दूंगी। Multiply equation 1 by 2 and add with equation 3। तो क्या मिलेगा, 2i1 + 2i2 + 4i3 = 4, -2i1 - 2i2 + 6i3 = 1। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया 10i3 = 5, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, इफ 10i3 = 5 तो i3 क्या हो जाएगा, 5/10, करेक्ट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/10, सो i3 क्या हो गया, 5/10, देयरफॉर i3 becomes 0.5 एम्पियर, करेक्ट। अब i3 भी मिल गया, i1 भी मिल गया, i2 चाहिए है, तो i2 कैसे निकालेंगे, we will substitute the values in any of the equation। So I will substitute in equation number 1। equation number 1 में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, putting the values in equation 1, so 0.8 plus i2 plus 2 into 0.5 = 2। तो ये हो जाएगा 0.8 plus i2 plus 0.5 into 2 is 1 = 2। so i2 क्या हो जाएगा, it will be 2 और ये दोनों minus 1.8, तो i2 क्या हो गया, 0.2 एम्पियर। ये भी मिल गया। अब हमें हर ब्रांच का करंट पता करना है। हर ब्रांच का करंट मींस करंट इन AB, करंट इन BC, करंट इन CD, करंट इन AD एंड करंट इन EF। तो हमने सर्किट डायग्राम में लिखा था, तो आई विल रब दिस और हम देखते हैं कि हर ब्रांच का करंट कैसे निकालते हैं। AB, जो ब्रांच AB में करंट फ्लो हो रहा था वो करंट हमारा I2 था। अगर आपको सर्किट डायग्राम याद हो तो या आपने बनाया हो तो उसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई है, विच इज 0.2 एम्पियर्स। फिर BC में जो करंट फ्लो हो रहा था वो था I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2, I1 की वैल्यू क्या थी 0.8, I2 की वैल्यू 0.2, तो जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 0.6 एम्पियर। फिर ब्रांच CD में जो करंट था वो था I1 माइनस I3, देयरफॉर इट इज 0.3 एम्पियर। ब्रांच AD में जो करंट था दैट वाज I3, तो I3 की वैल्यू भी हमारे पास है डायरेक्टली, विच इज 0.5 एम्पियर। और जो EF में फ्लो हो रहा था वो था I3 माइनस I2, तो दैट इज 0.3 एम्पियर्स। तो हमें सारे करंट्स मिल गए जो हमारे सारे ब्रांचेस में फ्लो हो रहे थे।
This is how we found the currents flowing through the branches. Okay. So now we will move towards the next problem. Next problem says that a current of 1 ampere flows through an external resistance of 5 ohm when it is connected to the terminals of a cell. The current is reduced to 0.6 ampere when the external resistance is 10 ohm. Calculate internal resistance of the cell by using Kirchhoff's law. तो अभी देखते हैं कि गिवन क्या क्या है. ठीक है. गिवन क्या है हमारे पास? R दिया है 5 ओम, हम कह सकते हैं R1 है 5 ओम. ठीक है. I1 दिया है 1 एम्पियर, R2 दिया है 10 ओम और I2 दिया है 0.6 एम्पियर. हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. So let us move towards the solution. किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज लॉ. सारा समेशन क्या है बैटरी में? टोटल वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का अलजेब्राइक सम 0 है, तो हम वही अप्लाई करेंगे. पहले I1 R1 प्लस I1 स्मॉल r विच इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी माइनस E इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब करो तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू R माइनस E इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया 5 प्लस R माइनस E इज इक्वल टू 0. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. अब अगर हम सेकंड केस लें, मतलब I1 R2 का केस लें, तो उसमें क्या होगा? I2 R2 प्लस I2 R माइनस E इज इक्वल टू 0. इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 0.6 इंटू 10 प्लस 0.6 इंटू R माइनस E इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया 6 प्लस 0.6 R माइनस E इज इक्वल टू 0. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं. By subtracting both the equations, that is subtracting equation number 2 from equation number 1, क्या मिलेगा? Subtracting equation 2 from equation 1, so that will give me 5 plus R minus E is equal to 0. 6 plus 0.6 R माइनस E इज इक्वल टू 0. क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन चेंज हो जाती है, तो ये बचा -1, यहाँ पे बचा 1 माइनस 0.6 इज प्लस 0.4 R और ये दोनों कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हमारे पास क्या बच गया है? ये -1 यहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा. राइट. Means I can say 0.4 R is equal to 1. तो R क्या हो गया? 1 upon 0.4 and 1 upon 0.4 means 2.5 ohm. Therefore, the internal resistance of the battery is internal resistance of the cell is 2.5 ohm. Okay? सिंपल है क्वेश्चंस, खाली क्वेश्चन समझने की जरूरत है. ठीक है. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लेक्चर. 2 cells of EMF 2 volt and 1.5 volt with internal resistance 1 ohm each are connected in parallel with similar poles joined together. The combination is connected to an external resistance of 10 ohm. Find the current through the external resistance. हमें सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है और फाइंड क्या करने के लिए कहा है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो पता करना है. ठीक है. सो
let us start solving. What is I? I is I1 plus I2. So we will apply Kirchhoff's voltage law on AF. तो क्या हो जाएगा? 2 is equal to 1 I1 plus 10 I1 plus I2. Correct? So I1 plus 10 I1 plus 10 I2 is equal to 2. It means 11 I1 plus 10 I2 is equal to 2. ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1. Now I will apply KVL on GFDCG, नीचे वाला लूप. 0.5 is equal to 1 I2 plus 10 I1 plus I2, which is I2 plus 10 I1 plus 10 I2 is equal to 1.5. मैंने सिर्फ साइड्स चेंज किया है जैसा यहाँ पे किया था. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा? 10 I1 plus 11 I2 is equal to 1.5. अब ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2. अब देखो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी है. हम 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री अलजेब्रा की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन. 11 है, 10 है, यहाँ पे भी 10 है और 11 है. तो हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन को 11 से और एक इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों की भी साइन सेम है. जब साइन सेम होती है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, साइन अलग होती है तो एडिशन करते हैं. करेक्ट. ये 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स है. आई डोंट थिंक कि मुझे ये डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है. करेक्ट. सो हम डायरेक्टली आगे करते हैं. तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 11 and equation 1 by 10. So और उसके बाद we will add subtract. तो क्या हो जाएगा? 121 I1 plus 110 I2 is equal to 22. करेक्ट. अब नीचे वाला 100 I1 plus 1110 I2 is equal to 15. अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगी. तो ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि सेम नंबर्स विथ ऑपोजिट साइन मिले हैं. अब 121 में से 100 माइनस करोगे तो यू विल गेट 21 I1 is equal to 7. तो I1 क्या हो गया? I1 became 7/21. And 7/21 means 1/3. Just 1/3 एम्पियर. अब 1/3 को अगर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.333 एम्पियर. 3 रिकरिंग रहता है ना. Substitute the value of I1 in any of the equation of your choice. तो क्या हो जाएगा? मैं ये वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? 11 into I1. तो I1 क्या है? 0.3 plus 10 I2 is equal to 2. ये हो गया 10 I2 plus 3.663 is equal to 2. अब ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा. 10 I2 is equal to 2 minus 3.663. Therefore 10 I2 is equal to minus 1.663. I2 क्या हो जाएगा? minus 1.663 upon 10. डिनोमिनेटर में 10 मीन्स एक जीरो और शिफ्ट. तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 0.1663 एम्पियर्स. फाइन. अब I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया. I3 क्या था? I1 प्लस I2. तो I3 की भी वैल्यू निकालते हैं. So I3 is equal to I1 plus I2. I1 की वैल्यू थी 0.333 प्लस, क्योंकि I2 माइनस में है तो ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस 0.1663. या क्योंकि यहाँ पे हमने 3 ही डिजिट लिया, यहाँ पे भी 3 ही डिजिट लेते हैं, 166 लेते हैं.
क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी 0.167 एम्पियर। ये हो गया I3। तो हमें क्या पता करना था, करंट फ्लोइंग थ्रू दी एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या था, I3, जिसे हम I भी कहते हैं। करेक्ट। अगर मैं I3 ना लिख के सिर्फ I लिखूं तो भी चलेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में उसे I लिया था, I कंसिडर किया था। करेक्ट। सो I can write it as the current flowing through the external resistance is 0.167 ampere. Okay. So this much is enough for today's lecture. हमने आज जो भी प्रॉब्लम्स किए वो किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे बेस्ड थे। हम नेक्स्ट टाइम जब प्रॉब्लम्स देखेंगे तो हम व्हीटस्टोन्स ब्रिज पर देखेंगे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।